Okay, everybody, welcome to our regular Thinking Thursday. And today we have Dr. Aneet, who is someone who I know for a couple of years now. And today she's going to be talking on how our life is governed by the various life experiences, and each and every experience leaves some imprint on our mind. I think we all are aware of this. Now, sometimes we hold these memories, she says, as regrets, grudges, and other times we also learn to move forward. Now, Dr. Aneet has been practicing homeopathy since the last 26 years. And over the years, she has been liberating people from emotional, mental, and physical anguish using different modalities, starting with homeopathy, past life regression therapy, neuro-linguistic programming. And she feels that the ability to solve various health issues of her patients has also given her a 5-star rating by Google. She has been working on mind, body, and soul alignment, and how all these are interconnected, and how the paradigm shift creates various disease patterns in our body. Today, on Thinking Thursday, she will help us to understand the solutions to the various problems in our life and how we can liberate ourselves from these various illnesses and diseases and negative thought patterns that we carry. So welcome, Aneet. Wonderful to see you. And I'm sure today's talk is going to be an eye-opener to many of us. And also it's important that we listen to these paradigm shifts that Aneet is speaking about from a perspective of a doctor. You know, as a spiritual healer, healers talk about it in a different way, but I think doctors, whether you're a allopath, homeopathy, your kind of Unani medicine, the perception can be a little different, and it can help us to understand things better. So, Dr. Aneet, welcome, my dear, and over to you. I'm going to request everybody to please mute yourself so that I don't have to keep muting. Otherwise, my focus is only on muting people rather than listening to our speaker. So please do that. And Aneet, you will have to unmute yourself so that you can be heard by all of us. And meanwhile, yes, thank you for unmuting. So everybody, let us spend the next 45 minutes, after which you can ask questions to Dr. Aneet. Okay, here we go. It's an honor to be here on this show. Especially, we have been hearing a lot of people coming on this shows and seeing a lot of people on the show giving such knowledgeable things, sharing so much knowledge on this platform. So today, as I talk about the mind, I would like to help you understand how our mind works first before I go further. So as I keep seeing people every day, our mind keeps distorting certain things. It holds certain things to its heart. और रोज जब मैं देखती हूँ लोगों को, आज मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल केस आया था जिसमें एक सज्जन आए जिन्होंने कहा मेरी रेटिना में कोई प्रॉब्लम आ गई है और कैन यू हेल्प मी विद दिस इशू. I had been to the top doctors, eye surgeons, eye care hospitals across a whole of Delhi NCR and even in Chennai. But सब मेरे को बोलते हैं कि आप चश्मा लगाओ, सर्जरी कराओ, कुछ भी कराओ, तो भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी. You have to live with it. So then I started asking him क्या इशू रहे हैं आपके लाइफ में. And this gentleman says that my son, I don't like my son, his behavior perturbs me. मैं जब उसको देखता था तो मुझे लगता था यार मुझे इसके साथ नहीं रहना है. तो मैंने पूछा ये कब से हो रहा था.
तो ये सेड कि जब वो 12-15 साल का हुआ, पहले तो मैं हर चीज को लेता था, बच्चा है, बचपन है, कोई बात नहीं। बट वो जब बड़ा हुआ और वो मुझे जवाब देता था और अजीब अजीब बातें करता था कि ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, तो मुझे उसकी बातें कभी समझ नहीं आई। और मुझे ये लगना शुरू हो गया कि मुझे उसे देखना ही नहीं है। जब हम ये रोज रोज एक कन्फ्रंटेशन किसी के साथ करते हैं और ये साथ साथ बोलते रहते हैं मुझे इसकी शक्ल देखनी ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एक कमांड चला गया आईज के पास और रेटिना पे कर्टन सा आगना शुरू हो गया कि मुझे इसे नहीं देखना है। तो ऑटोमेटिकली आईज के सेल्स ऐसे बनने शुरू हो गए जिससे कि उनका विजन थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो गया। और यही काम मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, कुछ टाइम पहले मेरे पास एक लेडी आई, उसने कहा कि मेरी बहू मुझे ऐसे बातें बोलती है, मुझे लगता है मुझे सुननाई क्यों देता है, मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी। और ये जब वो कुछ टाइम रिपीटेड बोलती रही कि मुझे ये सब नहीं सुनना, तो उसके कान खराब हो गए। तो हमारा माइंड बहुत ही सीधा साधा भोला भाला है। जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन माइंड को देते हैं ऐसी, माइंड सिंपली मान जाता है और फिर सोचता है चलो अब इसके बारे में हम काम करेंगे। तो ऐसे हम कोई भी ऑर्गन के साथ जब हम बिहेव करने लगते हैं कि हमारे को उस ऑर्गन से कोई प्रॉब्लम होनी जाती है, ऑटोमेटिकली ब्रेन उस ऑर्गन को ऐसे बिहेव कराना शुरू कर देता है। सेल्स की जो डीजनरेशन होती है वो ऐसे होने शुरू हो जाती है कि जो उनका फंक्शन है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। सो साइंटिस्ट ने कुछ सालों में ऐसी रिसर्च की जिसमें उन्होंने ये पाया कि आवर ब्रेन सेल्स जस्ट बिहेव लाइक प्लास्टिक। सो जैसे हम प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में किसी भी आकार में ला सकते हैं, हम बॉटल चाहे बॉटल बना सकते हैं, पेन चाहे पेन बना सकते हैं, प्लेट चाहे तो प्लेट बना सकते हैं। तो हम जैसे किसी भी फॉर्म में प्लास्टिक को चेंज कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने ब्रेन सेल्स को भी चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, जिसको उन्होंने टर्म दिया न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जैसे हम ये अब समझने की कोशिश करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी ये क्या चीज है और कैसे हमारे लाइफ में हमारी बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद कर सकती है। सो ये सबसे पहले इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के असर को आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज जो हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा काम करती है वो है हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स, जिन्हें हम डोज केमिकल्स भी कहते हैं। सो डोज is a very prominent term. D for dopamine, O for oxytocin, S for serotonin and E for endorphins. ये चारों कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के ग्लैंडुलर सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को गवर्न करते हैं, हमारे एनर्जी सेंटर्स पे हावी रहते हैं और इन्हीं के जो डायरेक्शन पे हमारी बॉडी आगे काम करती रहती है। तो अगर हम अपने डोपामिन को अगर समझें कि ये कैसे बनता है, डोपामिन हमारी बॉडी में रिवॉर्ड्स क्रिएट करता है। सो जब हमारे रिवॉर्ड्स अच्छे होते हैं तो हम अच्छे केमिकल्स बनाते हैं, और जब हमारे रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं रहते हमारे लिए तो हम नेगेटिव केमिकल्स बनाने लगते हैं। सो रिवॉर्ड्स किसी भी काम का अच्छा हो सकता है ना। डोपामिन को हम सही तरीके से भी यूज कर सकते हैं, गलत तरीके से भी। जैसे हमें रिवॉर्ड अगर एक्सरसाइज करके मजा आता है तो हम और ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं, या फिर अगर हमारे को कोई मिठाई खा के अच्छा लग रहा है, हमें अल्कोहल लेके अच्छा लग रहा है, हमें स्मोकिंग करके अच्छा लग रहा है, या हमारे पढ़ाई करके अच्छा कर लग रहा है,
हमें अच्छा किसी भी तरह से लग सकता है, ब्रेन को ये समझ नहीं आता कि ये सही है या गलत, उसे यही समझ आता है कि इसे अच्छा किस चीज से लग रहा है। अगर वो पॉजिटिव एक्शन है तो वो और प्रमोट करेगा, हमारे ब्रेन सेल्स और एक्शन ओरिएंट करना चाहेंगे कि ये काम और करो, और बॉडी उसी काम को और करना शुरू हो जाती है। कि अगर हम पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है जिस बच्चे को, वो और मेहनत करेगा किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, या फिर किसी और जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है। सो जैसे जैसे उसे अच्छा लगता जाएगा उतना डोपामिन सिक्रीट होता जाएगा, और ये डोपामिन ही क्या है, रीजन है, मेन रीजन है, कल्प्रिट है एडिक्शन के लिए। कि जिसे अल्कोहल ज्यादा पसंद है वो ज्यादा अल्कोहल का एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि हर बारी वो जब पीता है तो उसका और डोपामिन रिलीज होता है और वो और खुशी से पीता है। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और हम किस चीज से हम डोपामिन मोबाइल को देख के भी निकाल सकते हैं। कि बार बार जब हम स्क्रॉल करते जाते हैं सोशल मीडिया पे और हमें वही आनंद आता है, तो हम उससे भी डोपामिन निकाल रहे होते हैं। और अगर हमारी बॉडी में डोपामिन कम हो जाता है तो उससे भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस बढ़ जाता है हमारे लाइफ में, या फिर पार्किंसंस डिजीज हो सकता है, एडीएचडी जो प्रॉब्लम है, या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। ये कम डोपामिन बनने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगला केमिकल है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द लव हार्मोन। जब हम किसी को हग करते हैं, कडल करते हैं, हम किसी के साथ प्यार से बातें करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हम अपने पेट के साथ खेलते हैं, तो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और हमारे पूरे बॉडी में वैसी सी फीलिंग डेवलप कर हो जाती है, जिससे हमारे को एक नई खुशी का एहसास मिलता है, हम फुलफिल्ड फील कर सकते हैं। और तीसरा हार्मोन हमारा सेरोटोनिन है, जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हैप्पीनेस हार्मोन 90% सिक्रीट होता है हमारे गट में, इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो बनाते हैं, और 10% हमारे ब्रेन में सिक्रीट होता है। तो एक पिनियल ग्लैंड होता है, उस पिनियल ग्लैंड में दिन में जैसे ही सूरज निकलता है सेरोटोनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और रात को सोने के टाइम यही पिनियल ग्लैंड जब मेलाटोनिन सिक्रीट करता है तभी हमारे को अच्छी नींद आती है। तो जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है प्रोमिनेंटली कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसका मतलब उनका मेलाटोनिन ठीक बन नहीं रहा। और मेलाटोनिन का प्रोडक्शन के लिए मेन रीजन है कि रात को हमें एक बहुत अल्फा लेवल में हमें जाना होता है, स्लो ब्रेन को करना होता है, कि जिसमें हम अपने सोशल मीडिया से, अगर हम फोन से या गैजेट से 1 घंटा पहले, नींद से पहले अगर हम उसे दूर कर देते हैं, या फिर हम एक अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक लगा सकते हैं अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, और अंधेरा कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिल जाता है कि सोने का टाइम हो गया है, और वो एक स्लो ट्रांस स्टेट में जाना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी नींद के लिए मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है एंड वी गो इनटू अ वेरी डीप स्लीप। और जैसे ही सूरज की किरणें हमारे पिनियल ग्लैंड पे आनी शुरू होती है सुबह, वैसे ही हमारी नींद खुल जाती है और वही मेलाटोनिन अब सेरोटोनिन बन के सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। सो सेरोटोनिन सिक्रीट अगर हम कराना चाहते हैं तो एक्सरसाइज एंड बीइंग इन नेचर, ये 2-3 चीजें, हमारी डाइट भी अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब हम गट की बैक्टीरिया को हेल्दी फाइबर रिच फूड देते हैं तो ये गट बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स के साथ और अच्छे फाइबर रिच फूड्स के साथ जब प्रोड्यूस करता है सेरोटोनिन, तो वो हमारे पूरे बॉडी में एक फील गुड हैप्पीनेस वाली फीलिंग लेके आता है।
और फिर हमारा काम करने का और मन करता है. So it becomes a chain reaction wherein we are very happy doing some activity, and that activity in turn gives us happiness and we want to do more of that activity. तो जैसे जैसे हम सेरोटोनिन को सिक्रीट करते रहते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस सब डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं और हम एक ऐसी अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं जिसमें वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग. क्या एक्सेप्ट करते हैं? द लॉ ऑफ नेचर. हम अक्सर फाइट करते हैं जब हम बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन टॉक्स में जाते हैं या कोई हमारे को मोटिवेट करता है, ऐसे करना चाहिए, लाइफ में ऐसे करना चाहिए. तो अगर हमारे लाइफ में जो हमारा गोल है वैसा अगर हमारे साथ ना हो या हमारे लाइफ में कोई हडल आ जाए तो इमीडिएटली हम एकदम डिप हो जाती है हमारी एनर्जी. पर अगर हम इस सेरोटोनिन हमारा रेगुलर सिक्रीट हो रहा है तो ये हमारे अंदर एक फीलिंग लेके आता है एक्सेप्टेंस की कि जो हो रहा है ये अगर भगवान के हुक्म के अंदर हो रहा है, लॉ ऑफ नेचर के अंदर हो रहा है, तो डेफिनेटली भगवान मेरे से ज्यादा जानता है और वो हमेशा मेरा भला ही चाहता है. जब हम भगवान के सामने अर्पित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से सरेंडर मोड में चले जाते हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, जब हम कहते हैं और मानते भी हैं कि अगर हमारे माता पिता है भगवान तो वो हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे. तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए वो मुझे नहीं मिली. वर्सेस कि मैं फाइट करूंगा, सिस्टम को फाइट करूंगा और ये मुझे कैसे नहीं मिला, ये तो मिलना ही चाहिए, दूसरे को मिल गया, मुझे नहीं मिला. तो ये कॉन्फ्रंटेशन वाली स्टेट में जब हम आ जाते हैं तो हमारा एंगर बढ़ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है. और जैसे जैसे ये वाली फीलिंग्स बढ़नी शुरू होती हैं हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल सिक्रीट करना शुरू हो जाते हैं. और जैसे जैसे कॉर्टिसोल सिक्रीट होना शुरू हो जाता है तो वैसे लिवर तो अपने एंजाइम्स कुछ रिलीज करता है जिससे कि हमारे ब्लड में शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है. नाउ शुगर इसलिए बढ़ती है कि हमारे एक्सटर्नल मसल्स, जो पैरों के मसल्स हैं, जो शोल्डर्स हैं, हैंड्स हैं, पेरिफेरल एरियाज हैं, वहां पे ज्यादा एनर्जी आए कि अगर हमने कोई काम करना है, भागना है, कुछ एक्टिविटी करनी है तो हम यूज कर सकें. पर हम आज की डेट में हमारी लाइफ में इतने टाइगर्स आ गए हैं, टाइगर्स इन द फॉर्म ऑफ EMIs, या कोई किसी को हमने कुछ देना है, किसी से हमने कुछ लेना है, या हमने छोटे छोटे टाइगर्स बना लिए हैं. उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे, वो उसके पोस्ट पे इतने लाइक आए और मेरे पोस्ट पे इतने लाइक क्यों नहीं आए. तो छोटे छोटे जब हम कंपैरिजन करते रहते हैं, एंगर जेलसी में घूमते रहते हैं कि आई हैव टू लुक माय बेस्ट और आई हैव टू अचीव मोर वेल्थ, मेरा घर उससे बेटर हो या मेरी गाड़ी उससे बेटर हो. तो ऑल दीज एक्ट एज टाइगर्स इन आवर लाइफ और जो कॉर्टिसोल की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ाते रहते हैं. और जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ना शुरू होता है तो हार्ट की वेसल्स वैसे ही कंस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती हैं कि और प्रेशर से ब्लड जाए पूरे पेरिफेरल ऑर्गन्स में. और हार्ट की वेसल्स जब कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो हमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. और जब ये स्टेट कंटिन्यूअस रहती है, हम रोज एक स्ट्रेसफुल स्टेट में अगर हम रहते हैं कि आज ये ठीक नहीं, आज ये टाइम पे नहीं आई, आज मुझे ये सामान लेने जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो हम जब हमेशा कंटिन्यूअस एक प्रोसेस में रहते हैं जिसमें स्ट्रेस ही है हमारी लाइफ में, तो कॉर्टिसोल इतना बढ़ जाता है कि ये सारी हमारी स्टेट बन जाती है डिजीज की स्टेट. और इस सब को टैकल हम नहीं कर पाते द वे वी आर प्रोग्राम टू बी डूइंग.
हमारा चौथा हार्मोन है एंडोर्फिन्स। अब एंडोर्फिन्स तब सिक्रीट होती हैं जब हमारा स्ट्रेस बड़ा होता है या हमारी बॉडी में पेन कहीं पे भी होता है, तो ऑटोमेटिकली ये एंडोर्फिन सिक्रीट होती हैं और एंडोर्फिन्स अपना असर बॉडी पे दिखाना शुरू करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपको कहीं पे भी पेन है बॉडी में, बैक एक है, लेग पेन है, कोई भी दर्द है, और आपको उस टाइम आपकी फ्रेंड का फोन आ जाता है, मम्मी का फोन आ जाता है, और आप उस टाइम उसके साथ फोन पे बात करते रहते हैं, उसके साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो आप रियलाइज ही नहीं करते कि मुझे दर्द हो रहा था। आप कंफर्टेबली बात करते रहते हैं और आपको बिल्कुल फील कहीं से भी नहीं होता कि मुझे दर्द हो रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंडोर्फिन सिक्रीट हो जाते हैं और आपकी बॉडी का जितना दर्द था वो सब ब्लड में एंडोर्फिन्स घूमते घूमते ठीक करते जाते हैं। तो जितना ज्यादा हमारे ये डोज केमिकल्स डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स ऑप्टिमम लेवल पे सिक्रीट होते रहते हैं, उतना बेटर हमारी पूरी बॉडी परफॉर्म करती रहती है। चाहे वो किसी डिजीज के साथ लड़ना है, चाहे वो हमारे को ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करना है। तो जब हमारा कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाता है, तो दैट इज द मेन रीजन 80 to 90% of the time, the increased rate of cortisol, decreased rate of serotonin and dopamine as the main cause of any disease to start in our body. तो हम कोई भी काम करें, हमारे को कैसा पता चले कि हमारा ये डोज केमिकल्स ऑप्टिमम सिक्रीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? उसके लिए इजीएस्ट तरीका है कि रोज सुबह का एक नियम अगर हम बना ऑब्जर्व करने का, कि हम अपने ही थॉट्स को ऑब्जर्व करें या फिर हम नाम जपने की कोई प्रक्रिया को शुरू करें, सिमरन जैसी प्रक्रिया को करें, या किसी भी तरह हम एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। चाहे हम सुबह जाएं या रात को सोने के टाइम हम कुछ रिकॉर्डेड चला सकते हैं, या हम खुद थॉटफुलनेस या माइंडफुलनेस में जा सकते हैं। हम माइंडफुल ईटिंग भी कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग इज ए एक्सीलेंट वे ऑफ secreting the optimum hormones in our body, optimum enzymes in our body. जब हम खाने के टाइम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमारे ब्रेन को एग्जैक्टली पता चलता है कि अब हम क्या खा रहे हैं। हम फ्रूट्स खा रहे हैं, आई एम एंजॉइंग माई फ्रूट, विच एवर फ्रूट आई एम एंजॉइंग, वॉट एवर आई एम ईटिंग फॉर दैट मैटर। इनवेरिएबली आज की डेट में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे आगे या तो मोबाइल होता है या फिर टीवी होता है, और हमें अक्सर पता ही नहीं चलता। या अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस के क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं या किसी कोलीग के साथ बात कर रहे हैं, और पूरा खाना खत्म भी हो जाता है। उसी बात में उसी टारगेट को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो जब हमारे खाने के बारे में हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता। Now the brain was busy all the time in problem solving, और ब्रेन को जब पता ही नहीं चला कि खाना क्या आया है, तो वो वैसा एंजाइम हमारे स्टमक में रिलीज ही नहीं होता, या हमारे माउथ में इतने डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो लाइपेज है, एमाइलेज है, ये सब सिक्रीट ही नहीं होते। और हम बेस्ट ऑफ द खाना भी खाएं तो हमारे को वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, एसिमिलेशन नहीं मिलता, कि हमारे प्रॉपर कैल्शियम नहीं आ रहा, आयरन नहीं आ रहा, जबकि हम सब खा रहे हैं अपनी डाइट। तो डाइट से ज्यादा हमारा माइंड इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस सब में, हमारे को डिजीज फ्री रखने में। जो हम डाइट खाते हैं वो 10% मैटर करती है, एंड 90% इज द प्रोग्रामिंग ऑफ आवर होल ब्रेन। जो हम सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वैसे ही केमिकल्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, वैसे ही शक्ति हमारे में आनी शुरू हो जाती है।
तो ऐसे हमने लाइफ में बहुत इंसिडेंसेस सुने होंगे, देखे होंगे, पर हमारे को ये नहीं समझ आता कि ऐसे क्यों होता है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ डॉक्टर वासु भारद्वाज की। डॉक्टर वासु भारद्वाज was a scientist with NASA. So he was affected with cancer, bone cancer in 2000. 2000 में उनका नासा अमेरिका में इलाज शुरू हुआ और 4 साल उनका इलाज चलते चलते 2004 में उनको डॉक्टर्स ने कहा कि योर स्टेट इज वेरी बैड, probably you'll live for another 3 months. We cannot do anything much for you. His bones had started cracking. कहीं मर्जी की अगर कहीं पे भी प्रेशर लगता था जोर से तो उस जगह की बोन फ्रैक्चर हो जाती थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को ये बताया जब, तो उनकी वाइफ ने बोला कि मेरी इच्छा है कि अब तो आपको डॉक्टरों ने बोल दिया है, मेरी एक इच्छा है कि हम इंडिया चलते हैं, वहां पे हम अमृतसर जाएंगे, गोल्डन टेम्पल में जाएंगे और वहां एक अरदास करके आते हैं। डॉक्टर वासु भारद्वाज was an atheist. He did not believe in God. Being a scientist, he had lived all his life like this. His wife was a Sindhi and she did believe, and her cousin guided her on how to go forward. डॉक्टर वासु सेड कि यार ठीक है, मेरी जिंदगी से मैंने अपनी मर्जी से जी ली जिंदगी, और अब तुम जो बोलती हो तो वो भी कर ले, 3 महीने का ही टाइम है, उसमें मुझे क्या फर्क पड़ सकता है। और उन्होंने प्लान किया ट्रिप, दरबार साहब में उन्होंने अखंड पाठ रखाया, और अखंड पाठ रखाया, वो स्ट्रेचर पे आए, उनके साथ नासा के 3 साइंटिस्ट आए, और ज्यादा डिस्ट्रप्शन ना हो तो साइंटिस्ट ने एक स्पेशल जूस तैयार किया उनके लिए कि, और उनको कहा कि हर 1 घंटे में हम आपके मुंह में 1 चम्मच ये डालेंगे ताकि आपकी एनर्जी ऑप्टिमम रहे, पर आपको बार बार कहीं बाहर वॉशरूम भी न लेके जाना पड़े। तो अखंड पाठ रखा गया वहां पे, और 48 आवर्स का ये पाठ होता है। उस 48 आवर्स उन्होंने इससे पहले कभी गुरबानी नहीं सुनी थी। वहां स्ट्रेचर पे वो लेट के उनके सामने पाठ हो रहा था, और 8 घंटे के बाद उस पाठ में सुखमनी साहिब का पाठ होना शुरू हुआ। और जैसे ही वो पाठ होना शुरू हुआ, कुछ अष्टपदियों के बाद 15-20 मिनट के बाद उनको ऐसे लगा कि मेरे में थोड़ी एनर्जी आई है, और उन्होंने बैठने की कोशिश की। उनकी वाइफ ने उनको सब, उन्होंने देखा गुरु ग्रंथ साहिब में से एक जोत निकली, और जोत निकल के 3 हिस्सों में बंटी, उनके भाई के पास गई, उनकी बेटी के पास गई, और इतनी देर में जब बेटी ने ये सब देखा, उसने फटाफट मोबाइल निकाला, फिर वो जोत आई उनके पास। जैसे उनके पास आई, के अंदर से 2 गई, एंड अंदर इन्होंने कहा कि मुझे एकदम लगा जैसे एक धमाका सा हो गया अंदर, मेरे अंदर कुछ। मैं वैसे ही बैठा रहा, मेरी वाइफ ने कहा अब आप लेट जाइए, पर मैं नहीं लेटा। और उसके बाद मेरे में इतनी एनर्जी आ गई, मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है, पर फिर मैं बैठ के गुरबानी सुनता रहा। और आफ्टर some 2 hours or 3 hours, I started feeling कि मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। उन्होंने मुझे ये सारी कन्वर्सेशन 2006 में, वो इंडिया आए जब मैं उनसे मिली थी, और तब उन्होंने मुझे ये सारी स्टोरी खुद बताई, और कुछ वो फोटोज भी दिखाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं चश्मा पहने हुआ था, और मैंने चश्मा उतारा क्योंकि मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था। जैसे ही चश्मा उतारा तो मैंने देखा कि सब कुछ बड़ा ही क्लियर दिखाई देना शुरू हो गया है। सो आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि मेरा बहुत मोटा सा चश्मा था,
और उसके बाद मुझे ऐसे लगा मेरे से मेरा पूरा शरीर ठीक होता जा रहा है. At the end of 48 hours, he said, I stood and everyone came to help me. कि मैं कोई मुझे पकड़े, कोई बोले बैठ जाओ, लेट जाओ, पर मुझे ऐसी एक एनर्जी आई और मैंने बोला कि मैं अंदर मत्था टेकने जाऊंगा. मैं चल के गया अंदर मत्था टेकने. जो डॉक्टर्स मेरे साथ आए थे, दे वर ऑल वेरी सरप्राइज. दे सेड आप अभी भावुक मत होइए, इमोशनल मत होइए, हम पहले आपको सूरत लेके जाएंगे लैब में, वहां आपके टेस्ट होंगे. जब टेस्ट किए तो सारे टेस्ट नेगेटिव थे. There was no cancer in the body. Now, this story he told in 2006, and he has been telling the story to as many people. And the most surprising thing about this whole thing was, he said, "मैं आस्तिक नहीं था. It was my wife's faith." तो जब उनकी वाइफ का ऐसा फेथ था, तो हमारा किसी का भी अगर एक फेथ बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो हम एक क्वांटम लेवल पे कुछ चीजें बनाना शुरू करते हैं. Now, quantum physics is a very new field. Many of us have seen movies like Matrix, and other movies are also there. But हम उस लेवल पे अभी समझे नहीं हैं. लास्ट ईयर नोबेल प्राइज फिजिक्स का क्वांटम फिजिक्स पे ही किया है, और उन्होंने साइंटिस्ट डिड सम एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन. नाउ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक स्क्रीन लिया गया, और स्क्रीन पे जब वो इलेक्ट्रॉन शूट कर रहे थे, so they knew that Einstein had said कि इलेक्ट्रॉन कि जब हम वो पिक्चर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल बनता है. बट व्हेन साइंटिस्ट टुक द कैमरा एंड सॉ दिस इफेक्ट, they saw that a wave was forming. So they did this multiple times, and then they named this theory as the observer effect. Now the observer effect says if we are able to observe certain things in front of us, if we are able to create the positive picture in front of us, or any picture, whatever picture we create at the quantum level, that picture becomes a reality. Now, Dr. Vasu Bhardwaj's wife had created a picture कि वहां जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे. And that was the quantum theory, the observer effect of his wife, that worked 100% with him. So same is the case with us. If we want to live a disease-free life, we have to leave our past. We have to let go of the past incidents that are causing the low dopamine levels, low oxytocin, low serotonin, or low endorphins in our body. But if we are ready to let go of the negative past, then we can create our own future, be it good health, be it wealth, be it a big house, be it a big car, or good relationships. The choice is definitely ours. So whatever we want in our life, if we are able to create the quantum picture of that in our lives, automatically these things can become a reality, which is not difficult at all. The most difficult thing that people find is letting go of their past. ऐसी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम से बड़ी है. अगर कोई कहे कि मेरे पैरों में दर्द है, सामने वाला जरूर कहेगा ओ तेरा तो दर्द कम है, मेरा तेरे से ज्यादा है. हम खुश होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बता के, हम खुश होते हैं ये बता के कि मैंने टेस्ट कराए और मेरे टेस्ट में ये चीजें खराब आई, या मैं 2 दिन अस्पताल रह के आई, मेरा ये होमोग्लोबिन कम हो गया था, या आयरन कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, और डॉक्टर ने कहा इतना टाइम आराम करना. Versus we saying कि I am always happy, I am so healthy, I am so energetic.
हम पिटी फैक्टर को रिवॉर्ड बना चुके हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे से पूछे फोन करके कि क्या हाल है तुम्हारा। और यही पिटी का कारण है कि हम बार बार, जैसे हम पास्ट में रहते आए हैं, वैसा ही हम फ्यूचर अपने लिए क्रिएट करते रहते हैं। तो अगर हम अपने पास्ट को लेट गो कर दें, तो हम, अगर हम कोई मर्जी चीज आप चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वैसी ही पिक्चर देखना शुरू करें अपने लाइफ में, वैसी ही खुशियां पा सकते हैं, हैप्पीनेस पा सकते हैं अपने ईच एंड एवरी मोमेंट में। अगर हम प्रेजेंट में जीना शुरू करें, प्रेजेंट में हम शुक्राने के साथ जीना शुरू करें, तो ये एक्टिविटी हम, अगर आप लोग चाहें तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें कि हम जस्ट वी कैन लेट गो ऑफ ऑल नेगेटिव थॉट पैटर्न्स दैट वी हैव क्रिएटेड इन आवर पास्ट बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस वी माइट कीप जस्टिफाइंग। उसने मुझे ऐसे बोला इसलिए मैंने ऐसे किया, तो हम जस्टिफाई करते रहते हैं कि ये मेरे लाइफ में इसलिए ऐसे हुआ। और अगर हम जस्टिफाई करने की जगह ये सोचें कि अब मैंने अपना एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करना है, अपने एक जैसा फ्यूचर मैं चाहूं वैसी ही मैं पिक्चर बनाऊं, तो वैसा ही हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम उस मूवी के कैरेक्टर्स के साथ इतना पूरी करना शुरू हो जाते हैं कि हम खुशी से, अगर वो मूवी में हंसी गाना बजाना हो तो हम उसी रंग में ढल जाते हैं। अगर वो उदास हो, सैडनेस वाली मूवी हो, तो हम वैसे ही सैड हो जाते हैं, जबकि हमारे को अच्छा से पता होता है कि ये सब फिक्शन है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। पर हमारे को उसका फर्क ही नहीं पता चलता, क्योंकि हमारा ब्रेन जो देखता है उसी को मान लेता है। तो अगर हम इस बात को समझ गए, तो इसके बाद की कहानी कि हम जैसा फ्यूचर बनाते हैं वैसा ही फ्यूचर हमारे ब्रेन को समझ आ जाता है। और फिर वो पूरी कोशिश करता है, हमारे ब्रेन में एक आरएएस फैक्टर होता है, रेटिकुलर आर्टिकुलेटिंग सिस्टम है, जो फिर अपना गोल बना लेता है कि अब इस आदमी का ये गोल है, तो अब मैं इसके लिए ढूंढूंगा, यूनिवर्स में कोई मर्जी चीज है जो इसको इसके गोल के साथ मिला दे। तो मैं उन सारी चीजों को इकट्ठे करूंगा, उन सारे रिसोर्सेस को लाऊंगा, उन लोगों के साथ इसको मिलाऊंगा, ताकि इसका गोल पूरा हो जाए। हमारे ब्रेन में इतनी पावर है, और यही पावर हम अगर यूज कर सकते हैं हीलिंग करने में, चाहे हमारे कोई भी डिजीज है, अगर हमारे पास बीपी की प्रॉब्लम है या किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हम उस बीमारी के साथ प्यार पाल लेते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं, मेरे पास डॉक्टर साहब थायराइड की प्रॉब्लम है, उसके लिए तो गोली तो खानी ही पड़ती है, मैं पिछले 15 साल से गोली खा रही हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि ये तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। वो इस चीज पे पकड़ लेते हैं कि डॉक्टर ने कहा है लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। और जैसे ही मैं उनको कहती हूँ कि अगर आपकी इच्छा है तो हम ये गोली छुड़वा सकते हैं, पहले वो बहुत हैरान होते हैं। और फिर जैसे ही मैं उनको ऑप्शन देती हूँ और वो ऑप्शन लेते हैं, तो उनकी गोली भी 6 महीने के अंदर ही छूट जाती है। तो ये पिक्चर हम जितनी बढ़िया बनाते जाते हैं, उतनी ही बेटर और उतनी ही इजीली हमारी वो बीमारी भी हमारे से दूर चली जाती है। अगर आप लोगों के किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस है ऑन हाउ टू रिजॉल्व डिजीजेस, आई एम रेडी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक थी ये। डॉक्टर वासु भारद्वाज के तो गजब ही, जब आप बता रहे हो वो कि वो जोत निकली और तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो।
एनीवेज, आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो डॉक्टर अनीत से पूछ सकते हैं। हाँ, अनम्यूट करके पूछ लीजिए, पहले मंगल कार्तिक फिर आप। हाँ, हेलो। मेरे ना पैर में आई हैव गॉट रेस्टलेस लेग्स एंड मेरे पैर में ट्रेमर है। मतलब मैं चलती हूँ ना जब, तो मेरे पैर कांपते हैं। इसका क्या कारण तो होगा? आपका डोपामिन का, जी, इसका मेन कारण बॉडी में डोपामिन का। तो उसको कैसे बढ़ा सकती हूँ? एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है। धूप पे रोज जाएंगे आप। अच्छा, आपने आपने मेडिटेशन रोज, कोई रूटीन है आपका रोज का मेडिटेशन से? मैं सुबह ना वो फिजियोथेरेपी करती हूँ 45। अभी आजकल ऑनलाइन कर रही हूँ क्योंकि वो जो फिजियोथेरेपिस्ट आ नहीं सकते, मगर घर पर। ये लो, उधर रखो तुम्हारा। और उसके बाद रूटीन तो ऐसा है कि ये ट्रेमर की वजह से ज्यादा कुछ चल नहीं सकती हूँ, मगर शाम को मैं 1.5 किलोमीटर मेरी मेड के साथ ओके। चलती हूँ। मगर ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी मतलब अगर मैं सोचूं गोइंग बैक इन हिस्ट्री, ओके, हस्बैंड फौज में थे एंड उन्होंने जब फौज छोड़ी तो बॉम्बे में उन्होंने जॉब ले लिया। अब बॉम्बे में जब थे ना, तो हम लोग 10th फ्लोर में थे। मुझे बॉम्बे से बहुत घबराहट और बहुत टेंशन होती थी। ऐसे मुझे लगता था कि मैं कहीं भाग जाऊं। क्यों लगता था ऐसे? बॉम्बे का डर लगता था। 10th, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हम लोग तो बंगले में रहे, तो 10th फ्लोर, कभी डर लगता था कि तब मेरा ये मेनोपॉजल स्टेज चल रहा था, कभी अकेली रहने की आदत नहीं थी। तो 10th फ्लोर पर रहती थी, दिन भर कोई नहीं, हस्बैंड गए ऑफिस, शाम तक कोई नहीं है, कभी टूर पर चले गए, मैं अकेली हूँ। तो वो मेनोपॉज के टाइम भी मुझे वो हॉट फ्लशेज और वो सब होता था। वो तब समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, मगर रेस्टलेस लेग शुरू हो गए। और उसके बाद अभी फ्रॉम 2008 एक दिन पता नहीं कुछ वो इमोशनल घर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो my mother was standing, which I don't know what happened. My husband told her whatever, और एक दिन वो घर से निकल मैं से अभी फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, तो दैट हैज कम डाउन, बट अंदर से ऐसा ना बॉडी शेक होती रहती है, और जब मैं चलती हूँ तो मेरे लेग्स में ट्रेमर है। आप उसी घर में रह रही हैं जहाँ वो 10th फ्लोर पे? नहीं नहीं, अभी तो मैं पूना में हूँ। अभी आई एम वेरी कंफर्टेबल वहाँ। अभी मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए, हम लोग पूना में आ गए। मगर तब ये पता नहीं, ऐसे मुझे लगता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आता था। ऑल्सो यहाँ जब when this incident happened with my mother, I had this feeling, should I run away from here? मैं क्या करूं? I was angry with my husband, whatever, and few months like this it was happening. I couldn't express my anger or whatever it is, and then one fine day कुछ सिर के पीछे कुछ हुआ ऐसे, some sort of electrical something, and then I was in bed. पता नहीं, there was a feeling that I am so caught up over here कि I can't move, I can't, some sort of helplessness, whatever. I am taking medicine from a neurologist, but I think it is something to do with my mental. Yes. If you are ready to do an activity, I can work with you now. Yeah. Okay. So, मैं 2-3 चीजें आपको क्विक सक्सेशन में कराऊंगी। आप जी। यहाँ से
करते जाना। आपकी मदर जी। वापस आई नहीं आई? क्या हुआ मदर नहीं के साथ? नहीं आई। वो आपको शी स्टार्टेड मोर देन दैट ना, क्या हुआ, मेरे सब रिश्तेदारों ने लाइक मुझे बॉयकॉट कर दिया फॉर नो राइम ऑफ रीजन ऑफ माइंड। वन फाइन डे ऐसे मदर की कमरे में आई तो मदर ने सब चीजें पैक करके रखी हुई थी, तो मेरे समझ में नहीं आया क्या हो गया। कभी ये मेरे मौसी के पास रहने के लिए थोड़ी दिन चली जाती थी, तो बोली मैं मौसी के पास जा रही हूँ, तो मैंने जब देखा सब सामान इकट्ठा है तो आई रियलाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बोला माँ, मेरी भी कहा कि इनको ले जाओ या समथिंग लाइक दैट, बट वो नहीं आई पीछे। फिर वो अकेली रहती थी, फिर मेरे छोटे भाई के पास रहती है अभी। आवर रिलेशन इज गुड इन द सेंस आई गो टू मीट हर, शी इज इन पूना ओनली, शी इज 94 नाउ, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे वो गिल्ट है कि मैंने क्यों रोका नहीं उनको। तब से ये ट्रेमर है ना, आई डू फील। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं टैपिंग करती हूँ, मैं प्रे बहुत करती now हूँ। now we'll do something. Okay, now all this is anxiety that you have accumulated in your body. Okay, so major anxiety and guilt आपके अंदर भर गया है, ठीक है। तो हम उसको वॉश ऑफ करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी हम वॉश ऑफ करेंगे। आपने विजुअलाइज करना है कि आप जो भी एंजाइटी को आप एक कलर दे देंगे। जो कलर आपको नहीं पसंद, आप अपने कोई भी एक कलर दे दीजिए एंजाइटी को। और वो एंजाइटी, कौन सा कलर दिया आपने? ब्लैक। ब्लैक, ठीक है। तो और अब मेरे को एक अच्छा सा कलर बताइए जो आपका फेवरेट कलर है। पिंक। ठीक है, तो अब आप आंख बंद करिए और अपने बॉडी को स्कैन करना जरूरी नहीं है, पर आप सुनते जाएंगे। सुनते सुनते अपने बॉडी में देखिए, मेरे बॉडी में कहाँ कहाँ एंजाइटी का फीलिंग है। चाहे वो डिस्कम्फर्ट है आपके अंदर कहीं पे भी, ब्रेन में, शोल्डर्स में, चेस्ट में, आर्म्स में, लेग्स में, कोई भी डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग है उसको देखिए और हर जगह वो ब्लैक कलर करते जाइए। जहां जहां आपको ब्लैक कलर दिख रहा है वो आप देखिए, अंदर एक क्लाउड जैसा बन रहा होगा पूरी बॉडी में। वेरियस जगहों पे कोई घबराहट वाला फीलिंग है, भारीपन है, बेचैनी है कहीं पे, वो स्कैन करते हुए अब विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि आपके सामने एक टब भरा हुआ है डिवाइन वाटर का, और उस वाटर का कलर है ये पिंक कलर। पिंक कलर का पानी है आपके सामने, एक बहुत बढ़िया सा टब भरा हुआ है डिवाइन वाटर का, जिसमें आपके गुरु महाराज, कोई जिनको आप पूजा करते हैं, उन सब की उस पानी में ब्लेसिंग्स हैं। और विजुअलाइज करिए वो अभी इस टाइम सब आपके पूजनीय जन उसमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उस पानी को। आप ब्लेसिंग्स वाला पानी, जैसे आप बाथरूम में मग यूज करते हैं नहाने के लिए, आप विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि आपके हाथ में वो मग है, दोनों हाथ में आप फिजिकल एक्शन करेंगे। जैसे मग को उठा के अपने ऊपर डालते हैं, वैसे सिर से अपने ऊपर डालना शुरू करिए। थोड़ा स्पीड से आप डालते रहेंगे, दोनों हाथ से डालिए, दोनों हाथ से डालिए और देखिए, डालते 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 थोड़ा स्पीड से डालेंगे हम पानी। ऊपर से पिंक कलर का पानी जा रहा है और जैसे जैसे ये पिंक पानी वो ब्लैक के ऊपर पड़ता जा रहा है, ब्लैक क्लाउड को ये कम गहरा करता जा रहा है, वॉश ऑफ होना शुरू हो गया है। डालते जाएंगे पानी, ये डिवाइन वाटर में इतनी पावर है कि आपके सारे एंजाइटी को ये वॉश ऑफ कर देगा, सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ये वॉश ऑफ करता जाएगा। और आप डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, पूरे सिर से बॉडी के अंदर। अब ये सिर के अंदर जाना शुरू हो गया है पिंक वाटर,
विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए, फील करिए कि आपके ब्रेन के अंदर के सेल्स, जहाँ आपको अंदर फील हुआ था उस जगह पे अंदर जा रहा है ये पानी, अंदर जो भी इलेक्ट्रिक लोचा आपने बोला हुआ था उसको साफ कर रहा है, इम्पल्स को साफ करता जा रहा है। और आपकी ये जो ब्लैक की भद्दे दाग पड़े हैं वो सब इस डिवाइन वाटर में धुलते जा रहे हैं और स्पीड से करते जाएंगे। और अब मैंने एक डिवाइन शावर ऑन कर दिया है, आपके ऊपर डायरेक्ट एक शावर चलना शुरू हो गया है। और जैसे आप साबुन के साथ अपने किसी पार्ट को जो गंदा है उसको आप रगड़ते हैं, उसी तरह आप देखिए आपके माथे पर या कहीं बॉडी पे अगर कोई ब्लैक दाग है उस दाग को रगड़ना शुरू करिए जहां बैक में है, और ये फील करते जाइए कि ऊपर से पिंक कलर का पानी आता जा रहा है, ब्लेसिंग्स वाला शॉवर चलता जा रहा है। और जहां जहां बेचैनी फील हो रही है, लातों में फील हो रही है, वहां पे रब करते जाइए, वो ब्लैक दाग निकलते जाएंगे। ऊपर से डिवाइन शावर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और धोता जा रहा है इस एंजाइटी को, धो के निकालता जा रहा है, धो के निकालता जा रहा है, धो के निकालता जा रहा है इस एंजाइटी को। आपकी पूरी बॉडी स्वच्छ होती जा रही है इस डिवाइन ब्लेसिंग्स वाले पानी के साथ। एक एक सेल में ये पिंक कलर भरता जा रहा है और सारी कालक धुल के बाहर निकलती जा रही है, सारी कालक धुल के बाहर निकलती जा रही है। रगड़ते जाइए जहां बॉडी में कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट है, बेचैनी है, अनकंफर्टेबल फीलिंग है, भारीपन है, वहां पे रगड़िए। ऊपर से डिवाइन शावर चलता जा रहा है और वो पिंक कलर का पानी आपकी पूरी बॉडी के अंदर भर गया है, पूरी बॉडी को स्वच्छ करता जा रहा है। सारी गिल्ट निकल गई है, सारा गुस्सा निकल गया है, सारी बेचैनी निकलती जा रही है, एंजाइटी निकलती जा रही है और पूरी बॉडी के सेल्स ग्लो करना शुरू हो गए हैं, पिंक ह्यू में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, आपके पूरे सेल्स हेल्दी बनते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये हेल्दी वर्जन होता जा रहा है वैसे वैसे सब कालक दूर जाती जा रही है, आपके सेल्स के से बहुत दूर जा रही है, बहुत दूर जा रही है। सब रगड़ दीजिए, आज डिवाइन शावर ऊपर से चलता जा रहा है और सारी कालक हम रगड़ देंगे, सारी कालक रगड़ देंगे। और देखिए कि ये सारी कालक धुल के बाहर जा रही है, आपके कमरे से बाहर जा रही है, काला पानी बाहर जाता जा रहा है और सब अंदर पिंक होता जा रहा है, 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 पिंक होता जा रहा है। और घबराहट कम होती जा रही है, आपके रेस्टलेसनेस, ट्रेमर सब कम होते जा रहे हैं, सब कम होते जा रहे हैं, सब कम होते जा रहे हैं और एक शांति वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है। पूरे मस्तिष्क शांति हो गई है, पूरे चेहरे पे शांति हो गई है, एक आनंद वाली स्टेट आनी शुरू हो गई है, शोल्डर्स में शांति हो गई है, अपने आर्म्स आपके रिलैक्स हो गए हैं, आपके रेस्टलेस लेग्स शांत हो गई हैं और मानो आपका हृदय अब खुशी से स्माइल कर रहा है, आपका हर सेल बॉडी का स्माइल करना शुरू हो रहा है और ये स्माइल अब आपके चेहरे पे आनी शुरू हो रही है। आपका चेहरा आपके पूरे शरीर की खुशी को बयान करता हुआ खिल रहा है कि मैं तंदुरुस्त हो रही हूँ, मेरा पूरा शरीर हैप्पी और हेल्दी रहा है, मेरा पूरा शरीर हेल्दी फील कर रहा है। अब वापस स्कैन करिए अपनी बॉडी को और देखिए कि ये कहाँ पे सबसे ज्यादा आपको फील हो रहा है, अभी भी कहीं कोई भी फीलिंग जो भी आ रही है वो बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, क्या फील हो रहा है अब आपको? पेट में कुछ फील हो रहा है, क्या पेट में कुछ फील हो रहा है, स्टमक। क्या क्या बताइए, गोल गोल घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में हो रहा है आप रिवर्स डायरेक्शन में चक्की चलाएंगे। बर्पिंग भी हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, अभी आप ये रिवर्स करिए, गोल घूम रहा है ना, आप जिस डायरेक्शन में घूम रहा है आप उसका उल्टा घुमा दीजिए, अपने हाथ का एक्शन लेके उसको घुमाइए और सारी गैस बाहर निकल जाएगी।
आप गोल गोल ऐसे हाथ घुमाइए, जिस भी डायरेक्शन में हो उसका उल्टा करिए। उल्टा करते जाएंगे वो सब घबराहट बाहर निकलती जाएगी। घुमाते जाइए अपना हाथ गोल 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 डायरेक्शन गोल। में समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा नौसिया फील हो रहा है। आप घुमाएंगे ना तो आपका वो सब गैस बाहर निकल जाएगी। उल्टा करेंगे, जिस डायरेक्शन में फील हो रहा है उसका रिवर्स डायरेक्शन करिए। अंदर से बाहर है, ऊपर से नीचे है, जो भी डायरेक्शन लग रहा है उसका रिवर्स कर दीजिए आप एक्शन। आपको नॉर्मली भी रोज इतनी गैस होती है? नहीं। कभी कभार होती है, बट अभी सडनली शुरू। हाँ, वो सब जो रिलीज हो रहा है ना, वो इसीलिए रिलीज होने दीजिए, उसको मत रोकिए। जो अंदर का रुका हुआ है सब बाहर निकल रहा है, निकलने दीजिए। बेटर ना। बेटर। अभी अभी फिर स्कैन करिए बॉडी को, कहीं कुछ और डिस्कम्फर्ट है तो बताइए। नहीं, अभी पैर भी थोड़े शांत हो गए, जो बैठे बैठे भी अंदर से ट्रेमर होता है ना, वो थोड़े कम, मतलब ज्यादा नहीं फील हो रहा है मुझे। वेरी गुड। अब आप ये एक्टिविटी रोज कर लेंगे, हफ्ते के अंदर आपका सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। दिस इज सो मिराक्युलस, दिस इज सो मिराक्युलस। थैंक यू, थैंक यू। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू थैंक यू, जस्ट डोंट नो हाउ टू थैंक यू। वेलकम। भगवान का शुक्र करिए। हाँ, भगवान को बस। पता नहीं, भगवान आपके रूप में आ गए सामने। थैंक यू सो मच। वेलकम। Anyone else has any query? Ma'am, I have. Tell me. I have had some time, and below my knee, Okay. lockdown, where Ah. a cat had nailed me, and then I took some what you call that, tetanus, and it reacted on my body. I do have a guilt of my mother, who had told me when I had hospitalized her for her legs. She had told me, you purposely brought me to the hospital to kill me. So when was this? And this was around 10 years back. But, And you are carrying that since then? Yes, I do feel guilty at times, but I had done something for her good, because she also had this abscess in her leg. So doctor had asked her to get admitted, and she did not want to go to the hospital. So she kept on telling me this thing. And after getting admitted, on the 5th day, she expired. So you are carrying the guilt that she went because of you. Yeah, guilt also, anger also, and I don't know why, but my eyes have been for a very long time. When I was teaching in school. When was that? Now I'm retired. This is more than, I think, 20 years that I'm having this dry eyes problem. I don't get tears very fast in my eyes. So even if you're feeling sad, you don't cry? Very, very rarely one drop comes out. When I'm too emotional and I feel like crying, and when, I go with that hissing sound in me, when I cry, and then when I do that, one drop comes out. So how was your childhood?
very traumatic. So would you cry a lot in your childhood? Yes, I've cried a lot. I've been pasted a lot. I had a father who was Okay. who used to beat my So you mother. have a lot of traumatic past. Even my husband was after some years he started also hitting me. I would like you to note down my number. I'll have to work with you for a longer time. Give me a call and we'll work on this. It can't be done in small time. So I'll work with you. So you can note down my number 98 100 86 919. I have typed your number in the chat. Is this fine? 9810086919. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. God bless So you. we can fix a time and this can be resolved. You don't have to live with this. Thank you, Okay. ma'am. Thank you. God bless you. Welcome. Thank you. We have one more hand, Rahul. Please go ahead. Namaste, Anitji. Thank you Namaste. so much. It was so lovely, the talk. Thank you so much. And I just had one question. That Mangalji, she had said that very often that, ऐसा मुझे लगता था कि मैं भाग जाऊं, and it was repeated quite a bit of times. Is that what she had actually, brought her mind to? कि मैं भाग जाऊं, and that is why the restless leg syndrome happened. एवरीथिंग जब हम कुछ भी माइंड को कहते हैं ना, माइंड उसको एक ऑर्डर मान लेता है. Okay. और हम फिर माइंड लेग्स तो चली नहीं कभी भी. ठीक है, लेग्स चली नहीं, हम एक ही जगह पे बैठे हैं, हम एक ही जगह पे लेटे हैं, तो द रेस्टलेसनेस स्टार्ट्स. सो जैसे मैंने अर्लियर एग्जांपल्स दिए थे कि आईज में अगर कोई बोलता है कि मुझे इसको देखना ही नहीं है, तो उसकी आईज पे रेटिना पे कवर आ गया, या मुझे सुनना ही नहीं है वो क्या बोलती है, तो सुनाई देना कम हो गया. So I work with all these cases. I actually enjoy working with these patients wherein the other system has actually said कि आपके लिए इसके पास कोई क्योर है ही नहीं, आप कुछ मर्जी करा लीजिए, क्योर नहीं है. बट देन जब हम माइंड के थ्रू काम करते हैं ना, विद इन 2 to 3 months, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है. हम जब 2 to 3 months में ही हम वापस अपने पूरे ब्रेन को नया जब हम कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी भी नई हो जाती है. सो ये रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम जो है, मेन जब हम उसको किसी डॉक्टर को पूछेंगे तो वो बोलेगा खाली डोपामिन कम है. बट डोपामिन कम हुआ क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? ओके, तो डोपामिन की गोली खाने से उसमें आराम नहीं आता है. ठीक है, बट अगर हम वो कॉज को ठीक कर दें, हम वो रिवाइंड कर सकते हैं, हम कुछ भी लाइफ में जो हुआ है हम उसको डिलीट करके, जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का काम करते हैं, तो वी डिलीट द ओल्ड पैटर्न्स एंड क्रिएट द न्यू पैटर्न्स. एंड ब्रेन इज बहुत सीधा साधा, वो मान लेता है. हम जब मूवी देखते हैं हमको पता है वो फॉल्स है, फिक्शन है, बट फिर भी हम उसको मान के हम रोते भी हैं और हंसते भी हैं और खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं. तो वैसे ही जब हम अपनी लाइफ की मूवी देखते हैं तो हम वैसे ही उसको भी मान जाते हैं. सो द माइंड डजंट नो टू डिफरेंशिएट, नहीं ये तो स्टोरी बना रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है. एंड दैट इज व्हाई इट बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक. वेलकम. Anyone else? Okay. So that was wonderful, Anit. I think Mangalji has got relief already. And Benaz will definitely contact you, and I'm sure she too will get relief.
And we Yes. put the number in the chat, so please copy it down. And anyone can please contact Dr. Aneet and share your problems, anything. And I'm sure she's going to give you all a lot of relief. So thank you so much, Aneet, for being our guest today. Thank you, ma'am. And Thank you, ma'am. Yes, it was an amazing session. That's right. As Aneet Thank you, ma'am. so simply and so beautifully कि mind को बदलना जरूरी है और mind बदला जा सकता है और जब mind बदलता है तो body भी बदलेगा, right? The mind body complex, as we call it, right? There is a mind and body continuum है. Mind change होगा, Yes. body change होगा. So, and to control and change the mind is like she spoke about neuroplasticity. Brain like a sponge. Like sponge ka shape of change, you can change the shape of the sponge. When there is more water, the sponge becomes heavy. इसी तरह से जब आपके लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस होता है तो the brain becomes heavy, right? उसको कम करना है. There are so many techniques to work with your mind. So let's hope and pray that many of you will get relief. And मंगल जी जैसे डॉक्टर अनीत ने कहा, प्रैक्टिस करते रहना है. हाँ, जी जी जी, थैंक यू सो मच. आई हैड जस्ट लॉस्ट होप. मैंने ना जिंदगी मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी अपनी जिंदगी खत्म ही हो गई. आई एम 73, बट क्या करूं ऐसे लग रहा था. बट आज थोड़ा ना मुझे कहीं से होप आ रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी. wonderful. मैं थैंक यू अभी वेरी आपको- मच. ये मैं तो आपको आपने एक बोला, और मैं ठीक हो जाऊंगी को चेंज करके मैं ठीक हूँ ऐसे मैं सोच. ठीक हो गई. हाँ, हाँ, ओके ओके ओके. ठीक हूँ ऐसे सोच लीजिए, ठीक है ना? बस that's it. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Bless you, my dear. चलिए, आप thank you so much. सबने फौजा सिंह के बारे में सुना होगा. So Fauja Singh started running at the age of 89 after he lost his youngest son. So इतने grief आ गया था उनके कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने भागना शुरू किया. Now he is 113 and still he is a marathon runner. So 73 is a young age. That's right, 73 तो बहुत young. अंकल जी. चलो. Young and youthful and I can run. ऐसे शुरू Yes. कीजिए आज आपसे. Okay. Yeah, yeah. Thank you, thank you. Thank you so much, Aneet. It was wonderful, my dear. And everybody, Thank you, ma'am. It was an honor. thank you for being here today. And we'll see you again next Thursday. Thank you. Sure.